ہماری آج گفتگو کا موضوع ہے جو افغانستان کے لوگوں کو پاکستانی حکومت واپس بھیج رہی ہے. جو بچے وہاں پہ پیدا ہوئے، جو لوگ اتنے عرصے سے جن کو پشتو آتی بھی نہیں ہے افغانستان میں، ان کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان سے ایک آواز لگائی گئی ہے کہ غیر ملکی، لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ افغانی کوئی بوجھ نہیں ہے ہمارا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب پروگرام پہاڑی رنگ کے ساتھ. آج میرے ساتھ مہمان شخصیت جناب راجہ مختار صاحب ہیں. ہماری آج گفتگو کا موضوع ہے جو افغانستان کے لوگوں کو وہ واپس پاکستانی حکومت واپس بھیج رہی ہے، اس کے بارے میں ہے. افغانستان کے بارے میں جب مہاجرین کا یہاں پہ آنا شروع ہوئے تو اس کے بعد جب ابھی کتنے سالوں کے بعد جو بچے وہاں پہ پیدا ہوئے، جو لوگ اتنے عرصے سے جن کو پشتو آتی بھی نہیں ہے، وہ ان کے لیے تو بہت مشکلات ہیں کہ اگر وہ واپس جائیں اور اس ملک میں کیسے سروائیو کریں گے. افغانستان میں ان کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، اور حکومت کی یہ جو ایک دم سے جو پالیسی ہے اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. رائے صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور یہ جو افغانستان والے معاملے پہ جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انگریز صاحب. ہمیشہ جو ہے نا پہاڑی چینل ایک ایسا چینل ہے، میں ناظرین سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو کوشش کریں کہ اس کی جو ہے نا ویڈیو فارورڈ کیا کریں، اور جتنا زیادہ اس کو فالو کریں کیونکہ اس پہ جتنی بھی ہم بات کرتے ہیں، ہمارا موضوع جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کشمیر پہ ہی بات کرتے ہیں. ہم جہاں بھی کوئی انسانیت پہ کچھ اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم اس پہ ضرور اپنی آواز بلند کرتے ہیں. جو کوشچن آج کا جو رکھا گیا ہے میرے اور اورنگزیب صاحب کے درمیان میں، یہ جو آپ نے سنا کہ پاکستان سے ایک آواز لگائی گئی ہے کہ غیر ملکی، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اگر 24 کروڑ ایک پاپولیشن ہے وہاں موجود ہے، تو ہمیشہ جو ہے نا وہ کسی بھی کنٹری کے، آپ یورپ آپ نے دیکھ لیا جو اوورسیز بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پاپولیشن جو یہاں کی جو ترقی ہے یا یہاں کا جو دارا مدار ہے، جو ملک کو جو ہے نا وہ اگر وہ آگے لے کر جانا چاہتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ امیگرینٹ جو لوگ ہیں ان کو وہ باقاعدہ پورے رائٹ دیتے ہیں. تو وہ رائٹ جب دیتے ہیں تو امیگرینٹ جو ایسے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی وہ محنت کرتے ہیں، اور صحیح محنت سے جو ہے نا ملک کو ترقی بھی ملتی ہے اور کام بھی آگے نکلتے ہیں. تو یہ جو اتنا ڈرامہ رچایا گیا غیر ملکی، آپ نے اخوانیوں کو اگر نکالنا بھی تھا ادھر کرنا تو خاموشی سے آپ ڈاکومنٹ ان کے چیک کرتے، اور جو جن کے پاس کچھ ہے ٹھیک ہے، جن کے پاس نہیں ہے آپ کہہ دیتے کہ آپ جائیں اور لیگل طریقے سے اپلائی کر کے آئیں. پاکستان کے اندر آلریڈی کرائسس ہے، تو یہ چیز جو ہے نا ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور دوسرا میرا یہ بھی ایک بڑا افسوسناک بات ہے کہ اخوانی اتنے عرصے سے جب افغانستان سے یہ اخوانی پاکستان آپ ایکسپٹ کر رہے تھے، لے رہے تھے، جب رشیا کی جنگ چل رہی تھی تو اس وقت تو آپ نے بڑی خوشی سے جو ہے نا وہ کیمپ بھی لگائے ہوئے تھے. اور کیا آپ ان سے جو راحت ملتی تھی یو این کی طرف سے یا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، اس وقت تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہوگا، ہمارے لیے بوجھ ہوگا. لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اخوانی کوئی بوجھ نہیں ہے. ہمارے پڑوسی ہیں، ہمیں جو ہے نا اسلامی طریقے سے جو اسلام ہمیں کہتا ہے، اجازت دیتا ہے، اس طریقے سے ہمیں انہیں اکوموڈیٹ کرنا چاہیے تھا. اور جو اتنے سے رہ رہے تھے کچھ نوٹس دیتے اور ان کو لیگل کرنے کی بات کرتے. اگر کسی کے پاس اگر کوئی اتنا سے کہ پروف ہے یا یہاں کے جو بچے پیدا ہوئے وہ ان کو آپ پاکستانی سٹیزن دیتے، تو یہ تو اوورسیز ہر ملک کو جو ہے نا وہ آپ کی جو یہ بات ہے وہ پسند بھی آتی، اور اخوانی بھی جو ہے نا وہ اس چیز کو سمجھتے کہ پڑوسی ملک نے ہمارے ساتھ ہمیشہ اچھا کیا. ہم ایک کسی بندے کی غلطی کی وجہ سے پوری قوم پہ جو ہے نا بلیم ڈال دیتے ہیں. کوئی ایک اگر غلط بات کرتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے نا اس کی قوم پہ ہم انگلی کھڑی کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر صوبے میں ہر اچھے بھی لوگ ہیں، برے بھی لوگ ہیں. پاکستان کے اندر اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکہ میں اگر رہتے ہیں تو اگر یہاں اگر کوئی پاکستانی اگر یہاں غلطی کرتا ہے یا کچھ فراڈ کرتا ہے تو وہ پورے پاکستان کو گنتی میں نہیں لے کر آتے، اسی کو ان کے خلاف رکھتے ہیں. ایکشن ہوتا ہے. تو یہ جو چیز ہے
होना तो यही चाहिए था कि इनको लीगलाइज करते, उनको टाइम देते और कुछ उनका डॉक्यूमेंट मांगते, प्रूफ मांगते, तो जो जो उस पर ना उतरता है उसको आप नोटिस दे देते कि आप जाएं और लीगल तरीके से आए। तो ये तो बात थी, लेकिन हमने इतना शोर मचाया। क्या ये इसके पीछे कोई मकसद है? मैं तो समझता हूँ कि वाकई कोई मकसद है जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि ये पठान है तो इनके साथ खान लगता है, तो शायद कोई इससे कोई डर है। तो बहरहाल ये एक अलग सियासी बहस है। तो हम तो इंसानियत के लिहाज से बात करते हैं कि इन लोगों जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं और जो आज मैं समझता हूँ औरंगजेब साहब, वो तो लोग तकरीबन 30-40 साल की उम्र हो गई है उनकी। बिल्कुल, उनको तो पश्तो भी नहीं तो आती। हाँ, तो उनको यहाँ से निकालना, फिर बूढ़े, आप कुछ तो रिस्पेक्ट करते हो औरतों और बच्चों को, आपने उठाकर बॉर्डर में फेंक दिया। तो 24 करोड़ जहाँ थी वहां अगर 2-4 लाख या 10 लाख अगर रुक भी जाते तो कौन सा इतना बोझ बन जाता। ये लोग जो है ना वो मेहनत करते हैं, काम करते हैं और फिर उनके बिजनेस से तो कुछ टाइम देते। तो मैं समझता हूँ अंग्रेज साहब इसके बारे में बताएंगे कि अगर टाइम देते ये तो ये कितना अच्छा ये रहता। जो पॉलिसी बनाने वाले स्पेशली अदारे हैं, उनको सोचना चाहिए। हुकूमत जो इस वक्त तो निगरान हुकूमत है, इस वक्त तो किसी पार्टी की हुकूमत नहीं है। जो पॉलिसी बनाने वाले अदारे हैं उनको और निगरान हुकूमत को मिल बैठ के इसके बारे में कोई लाएअमल अख्तियार करना चाहिए था, ताकि इन लोगों को अकोमोडेट किया जाए। इन लोगों जो भी बाहर से जो भी लोग आते हैं, ये आपके पास तो एक ह्यूमन पावर है, आप तो उनसे काम ले सकते हैं। वो आपके मुल्क में रहेंगे, टैक्स देंगे, आपके चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तो वो इस मुल्क के इकानमी के लिए भी बहुत अच्छा था। लेकिन आई डोंट नो कि ये पॉलिसी बनाने वाले अदारे ये किस तरह सोचते हैं। इनकी पॉलिसी कोई देर पा नहीं होती, इनका वक्त ही ये होता है कि हमने इस पे एक्शन लेना है। और मैं समझता हूँ कि इतने पाकिस्तान के जो थिंक टैंक हैं उनमें से कोई भी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सोच नहीं रहे कि इसके बारे में कोई बाकायदा पॉलिसी अपनानी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि सब अफ़गानी जो है ना वो क्राइम नहीं करते, चंद होते हैं लोग। उसका मतलब ये नहीं कि पूरे अफ़गानिस्तान के लोगों को आप मुल्क बदर कर दें, उनको ट्रकों में भर के भेज दें। तो उस पे दुनिया का जो पूरा मीडिया है ये भी पाकिस्तान की जग हसाई हुई है। और ये पाकिस्तान के आई डोंट नो खारजा पॉलिसी कहाँ पे सोई हुई है, क्या काम कर रही है। तो मैं ये भी समझता हूँ कि आज अगर इस मुल्क को बचाना है तो उसमें पॉलिसियों पे नज़रसानी करने की बिल्कुल ज़रूरत है। नजरसानी करनी चाहिए और दूसरा हमें अपने पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। बिल्कुल, हमें अगर पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो अगर देखें, अगर पाकिस्तान बड़ा मुल्क है और एक पावर भी है और इसको बड़ापन का मुजाहरा करना चाहिए। और इसी में बेहतरी है कि ये मुल्क तरक्की उसी सूरत में कर सकता है कि ये इमिग्रेंट जो होते हैं ये तरक्की का राज होते हैं। तो हम इन मुल्कों में जहाँ प्रदेश में रह रहे हैं, इटली के अंदर देखें आज भी लोग जो है ना धड़ाधड़ जा रहे हैं, वो उनको जो है ना वर्क परमिट इशू करते हैं और लीगलाइज करते हैं। कोई वो इस चीज़ को जो है ना बोझ नहीं समझते, या कोई वो ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी है तो ये शायद दहशत गर्द हूँ। लेकिन देखें इटली कहाँ पहुंच गया। तो बैरून मुल्क जो भी यूरोप में मुल्क है, ये इन्होंने जो है ना वो इमिग्रेंट को अहमियत दिया, उनको लीगलाइज किया। तो हम अगर पाकिस्तान अगर ये काम अगर स्टेप कर लेता है, लीगलाइज कर देता है इनको, तो कौन सा फर्क पड़ता था। बिल्कुल। आप 24 देखें ना करोड़ कि यहाँ पे जो इनलीगल लोग आते हैं, अमेरिका में आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, तो उनको फुल राइट देते हैं कि वो अपने जो है ना वो केस पेश करें। अगर वो उनको ऐसे तो नहीं उठा के बॉर्डर के दूसरी तरफ फेंक देते हैं। जो एक दफ़ा बॉर्डर क्रॉस करके आ जाता है उसको हुकूमत अडॉप्ट करती है, उनको अखराजात बर्दाश्त करती है, उन लोगों को वो लीगल कोशिश करती है कि इनके लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएं और इनको इस मुल्क की ये जो आपने बात बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया। देखिए यहाँ कुछ अरसे से, काफ़ी अरसे से जो है ना वो मैक्सिकन बॉर्डर पर जो है ना पाबंदी लगी हुई थी। तो ये पिछली जो गवर्नमेंट थी ट्रम्प के दौर में जो है ना काफ़ी सख्तियाँ की गई थी। तो फैमिलियाँ जो है ना कैंपों में रह रही थी। तो ये जब गवर्नमेंट आए तो इन्होंने उनको जो है ना कोई डिमांड नहीं की। जैसे यहाँ बेल होता था, बेल भरकर लोग जो आते थे अंदर आते थे, तो इन्होंने बल्कि उन खानदानों को उठाया और आज वो यहाँ रह रहे हैं और वो 3 स्टार 4 स्टार होटल में रखा हुआ है, उनको अकोमोडेट कर रहे हैं, उनके खर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं।
ये 1.7 मिलियन लोगों को जो है ना इन्होंने इस मौजूदा हुकूमत ने जो है ना वो मैक्सिको बॉर्डर से लिया है। जितने इमिग्रेंट हैं उनको आने दिया और उनको अब सिर्फ आने नहीं दिया। पिछले हफ्ते की बात है कि एक दो बसें जो है ना वो यहाँ न्यूयॉर्क सिटी के अंदर ब्रॉन्क्स से उठाकर ब्रुकलिन के अंदर ले गए। तो वहाँ उस जो इमिग्रेंट थे उन्होंने कहा उस इस रियाज जहां उन्होंने बताया कि आपने यहाँ ठहरना, तो उन्होंने कहा हम इसको नहीं पसंद करते यहाँ रहना। देखें हमारे यहाँ होते तो वो तो ठुड्डू से शायद उनको कहते कि यहीं रहना मरना जीना, लेकिन उन्होंने वापस उसी बस में बिठाया और वापस उसी जगह ले गए जहां से उनको पिक किया था। ये होता है इंसानियत। तो मैं समझता हूँ कि हमें, हम मुसलमान तो पहले बन जाते हैं, लेकिन जो बेसिक चीज है वो हमें इंसानियत, पहले हमें इंसान बनना चाहिए और फिर हमें आगे जो है ना मजहब को देखना चाहिए कि हम मुसलमान कितने हैं और कितने मजबूत हैं। नाजरीन, मैं समझता हूँ कि आज अगर इमरान खान की हुकूमत को लोग पसंद करते हैं तो उसके पीछे एक वजह ये भी है कि इमरान खान चाहता था कि जो बच्चा पाकिस्तान में किसी भी मुल्क का है, पाकिस्तान में पैदा हुआ है या 5 साल जिसने यहाँ पे काम किया है, उसको पाकिस्तान की सिटीजनशिप देनी चाहिए। आई थिंक इसका बिल भी असेंबली में पेश हुआ था या कुछ इस तरह की एक दफ़ा डिबेट चली थी। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी अगर ये पॉलिसी मेकर्स जो हैं, ये अगर ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं जिसमें मुल्क का फ़ायदा हो और ये लोग सारे मुल्क जितने भी ओवरसीज लोग आते हैं किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। और राय साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि आज भी हुकूमत को और पॉलिसी मेकर्स अदारों को ये सोचना चाहिए कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। चाहे ये अफगानिस्तान की पॉलिसी है, चाहे ये कश्मीर पे जो पॉलिसी है, गुज़श्ता 70 सालों से और 5 साल के बाद कश्मीर के बारे में जो पॉलिसी है वो बदलती रही है। और ये मैं समझता हूँ कि आज ये वक्त आ गया कि इन अदारों को और हुकूमत के जो लोग हैं उनको बैठ के पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की सालमियत के बारे में, पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी के बारे में मिल के बैठ के सोचना चाहिए। और ये उसी सूरत में मुमकिन होगा कि निगरान हुकूमत है वो ऐसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जिससे ऐसी हुकूमत आए जो अवामी नुमाइंदों की हो, जो मुल्क के बारे में सोचें। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी गुफ्तगू पसंद आएगी। और इसके बाद राय साहब, आपसे एक और क्वेश्चन है कि गुज़श्ता दिनों हमने जो न्यूयॉर्क ओवरसीज़ कश्मीरी ग्रुप के ज़ेर एहतमाम हमने कलेक्शन की थी, जो हादसा पेश आया था यूनान में, कश्ती हादसा, जिसमें हमारी जो कश्मीर के वादी बना के काफ़ी लोग उसमें शहीद हुए, काफ़ी जो जवान बच्चे शहीद हुए। तो उनके लिए जो न्यूयॉर्क ओवरसीज़ कश्मीरी ग्रुप है उसने खुसूसी इमदाद की उनके लिए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या समझते हैं कि देखें ये ओवरसीज़ के काम यही रह गए सड़कें और आजाद कश्मीर की इन्होंने बात की, तो आजाद कश्मीर में तो आजकल तो एक ट्रेंड चल गया कि हर काम जो है ना ओवरसीज ही करते हैं। रोड वो बना रहे हैं, हॉस्पिटल वो बना रहे हैं, अस्पताल वो बना रहे डायलिसिस सेंटर तक चड़ोई के अंदर जो है ना एक बरसा में वो डायलिसिस सेंटर जो है ना वो कोशिश करेंगे वहां हो जाए। तो ये ओवरसीज जो है ना ये सारा ही काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज ने ये जो यूनान का वाकया था इस पे बड़ा एक हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमारे जवान बच्चे जो है ना किस तरह वहाँ और एक सेकंड नहीं लगा और वो मौत की ढेर हो गए। तो उनकी फैमिलियों के अंदर जो है ना वो बड़ा क्राइसिस हो गया था। कुछ ने जेवरात बेचे, जमीनें बेच दी। लेकिन हम यहाँ हमने कोशिश की तो वो जो खुद रुंगजेब साहब की मेहरबानी, ये हर घर में गए, जो मुस्तहिक थे ज्यादा उनको इन्होंने इमदाद की। तो ये कोई हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमने कोई बड़ा काम किया, मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि बाकी भी ओवरसीज बैठे हैं उन्होंने भी किया। तो अगर जो सुनने वाले हजरात हैं अगर वो कर सकते हैं तो वो भी करें, ताकि अभी भी वो मुश्किल में है, वो फैमिलियां अभी भी मुश्किल के अंदर है। नाज़रीन, मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पे ओवरसीज़ लोगों का किरदार है, वहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने भी उनकी सपोर्ट की है, और लेकिन हुकूमतों का जो किरदार है वो नज़र नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के क्राइसिस हैं, जो इस तरह के मामलात हैं, अगर मुल्क में रोज़गार हो, मुल्क में नौजवानों के लिए मौके हों, तो वो इतना बड़ा कदम ना उठाएं। लेकिन यह है कि हुकूमतों को इसके बारे में पॉलिसियों पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। और नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।